English classes. I am Manisha Srivastav. Today I am here to explain poetry number 3 of the book Hornbill, which is for students of class 11th. The title of the poem is The Laburnum Top and it is written by poet Ted Hughes. In this video, I will tell you about the poem's background and title, stanza-wise explanation and poetic devices used in this poem. So, let's start with about the poet, who is Ted Hughes. Ted Hughes, born on 17 August 1930 in United Kingdom and died on 28 October 1988, was an English poet, translator and children's writer. Critics frequently rank him as one of the best poets of his generation and one of the 20th century's greatest writers. He served as Poet Laureate from 1984 until his death. Now, coming to the next point, which is poem's background and title. So, the poem The Laburnum Top is a beautiful poem in which the poet has used the laburnum tree and goldfinch as a symbol of life and its fluctuations. लेबरनम ट्री और गोल्डफिंच एक बर्ड होती है, उसका यूज किया गया है लाइफ के सिंबल के रूप में. In this poem, the poet describes how the visit of a goldfinch changes the laburnum tree. The goldfinch transforms the tree and makes it come alive as the chicks of the goldfinch start to rustle and chirp on seeing her. Once the goldfinch leaves the tree, it becomes quiet and still again. The laburnum tree symbolizes the pattern of our life in general, which is usually dull and inanimate. The goldfinch breaks the usual pattern and makes it lively. Without the goldfinch, the laburnum tree is just like another tree. Here, poet wants to tell the reader the importance of living with each other. Means, laburnum tree में goldfinch अपने chicks को सेफ रखने के लिए अपना nest बनाकर रहती है और चूंकि लेबरनम ट्री गोल्डफिंच को एक नेस्ट बनाने की का एरिया प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले में गोल्डफिंच का वहां आना उसके एटमॉस्फेयर को, ट्री को बिल्कुल चेंज कर देता है. कैसे, वो इस पोएम में डिस्क्राइब्ड है. तो पोएट यहाँ बताना चाहते हैं कि हर किसी लिविंग बीइंग की अपना इंपॉर्टेंस है, अपना यूज है. अगर कोई लिविंग बीइंग छोटा है या कोई लिविंग बीइंग बड़ा है तो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब हर कोई किसी के काम आ सकता है. एक दूसरे के साथ रहने का अपना इंपॉर्टेंस होता है, वो इस पोएम में ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है. नाउ द टाइटल इज द लेबरनम टॉप. मतलब लेबरनम एक ट्री है, हिंदी भाषा में आप उसको अमलतास ट्री कहते हैं. तो लेबरनम ट्री है जिसके टॉप पर नेस्ट बना है और उस नेस्ट में क्या क्या है ये हम पोएम में बताएंगे आपको. और बहुत खूबसूरती से अलग अलग जीव की, अलग अलग लिविंग बीइंग्स की इंपॉर्टेंस को बताया गया है. सो नाउ आई विल टेल यू स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. Stanza 1. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seed fallen. Now the explanation is, laburnum top here means top part of the laburnum tree. The poet describes a beautiful sunny autumn. यहाँ पर poet ने एक ब्यूटीफुल सनी ऑटम यानी खूबसूरत सी ऑटम के दिन का जिक्र किया है. ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का मौसम. पतझड़ जब पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं, येलो कलर के होकर नीचे गिरने लगते हैं, आपने देखा होगा अक्सर. तो इस पोएम की शुरुआत में पतझड़ के मौसम का जिक्र है और पतझड़ का एक मौसम सितंबर की एक सुबह जिसमें खूब धूप खिली हुई है. द लेबरनम ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल. लेबरनम यानी अमलतास का पेड़ बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ा है. इट इज लैडन विथ येलो लीव्स एंड येलो फ्लावर्स इन सितंबर. और ये पौधा या ये पेड़ पूरी तरीके से येलो लीव्स से लदा हुआ है और इसके फ्लावर्स भी पूरी तरह पीले पड़ चुके हैं. इट्स लीव्स हैव टर्न्ड येलो बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन एंड ऑल इट्स सीड्स हैव फॉलन. सारी
पत्तियां पीली पड़ चुके हैं और पतझड़ के मौसम की वजह से सारी पत्तियां और इसके बीज सब कुछ गिर पड़ा है जमीन पर। यानी कि पूरा पतझड़ का मौसम है, एक पेड़ है येलो पत्तियों से लदा हुआ जो शांत स्थिर एक खूब धूप खिले हुए मौसम में अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है। उस लेबनम ट्री का वर्णन है। नाउ स्टैंजा 2 is till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Now the explanation is, just then a goldfinch alights on the laburnum tree, making short, high-pitched sounds. I have told you in stanza 1 that there is a laburnum tree which is standing still in a sunny autumn. मतलब पतझड़ का मौसम, खिली हुई धूप और एक लेबरनम ट्री जिसके पत्ते येलो पड़ गए हैं, उसके सीड्स गिर गए हैं, शांत सा खड़ा है अपनी जगह पे। तभी एक गोल्डफिंच यानी कि एक येलो कलर की छोटी सी चिड़िया वो छोटे छोटे हाई पिच साउंड आवाज करती हुई अंदर एंटर करती है लेबरनम ट्री पर। The goldfinch has her nest in the tree and her chicks are resting in the nest. गोल्डफिंच ने अपना एक नेस्ट बनाया हुआ है लेबरनम ट्री पे और उसके चिक्स यानी चूजे, छोटे छोटे चूजे उस नेस्ट में रेस्ट कर रहे हैं। On the mother's return, a sudden movement stirs the tree. माँ के लौटने पर, अंदर पेड़ पर आने पर एक हल्का सा मूवमेंट होता है जिससे पेड़ जैसे हिल सा जाता है, उसके पत्ते हिल से जाते हैं। Her little ones are excited on her arrival and start chirping. उसके छोटे छोटे चूजे अपने माँ को देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं उसके आने पर और खुशी से चहकने लगते हैं। The cautious mother enters the tree with great care so that no predator can come to know that her babies are housed in the nest. यहाँ पर मदर गोल्डफिंच इतने धीरे से एंटर करती है अपने नेस्ट में लेबरनम ट्री में जिससे कि कोई प्रीडेटर किसी भी शिकारी को या किसी शिकारी जानवर को या चिड़िया को बिल्कुल पता ना लगने पाए कि उसके बच्चे यहाँ पर हैं और उनको कोई वो हार्म ना पहुंचा पाए। तो वो इस तरह से एंटर करती है कि कुछ आवाज ना हो, कुछ पता ना चले कि उसने यहाँ पर नेस्ट बना रखा है। The poet has compared the alert, abrupt and sleek movement of the goldfinch with that of a lizard. यहाँ पर पोएट ने जो ये एकदम कॉशियस सा वो मूवमेंट करती है गोल्डफिंच, मदर गोल्डफिंच एकदम धीरे से आती है कि जरा सी भी सरसराहट ना हो पेड़ में और पता ना चले, इस मूवमेंट को कंपेयर किया है लिजर्ड के मूवमेंट से। जिस तरह से लिजर्ड चलती है बिल्कुल पता नहीं चलता, एकदम हल्के मूवमेंट के साथ, उसी तरह से मदर गोल्डफिंच अपने नेस्ट में एंटर करती है। द गोल्डफिंच हैज बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पर गोल्डफिंच को अपनी फैमिली का इंजन कहा गया है। जस्ट एज द इंजन स्टार्ट्स अप द मशीन, हर अराइवल इन द नेस्ट हैज सडनली स्टार्टेड अप द साइलेंट मशीन दैट इज नेस्ट। जिस तरह से कोई भी इंजन जब शुरू होता है तभी कोई मशीन स्टार्ट होती है, काम करने लगती है, उसी तरह से गोल्डफिंच का आना, मदर गोल्डफिंच का एंटर करना एक मशीन यानी कि नेस्ट को बिल्कुल गुंजायमान, चलता फिरता सा कर देता है और वो मशीन चलने लगती है। मतलब उसमें जो चूजे हैं वो आवाजें करने लगते हैं, चहकने लगते हैं और लेबरनम ट्री में एकदम से मूवमेंट दिखाई देने लगता है। The young ones have started chittering and making noise. यहाँ पर मशीन के काम करने का मतलब क्या है कि यंग वंस जो छोटे चूजे हैं, जो चिक्स हैं, वो बिल्कुल आवाजें करना, चहचहाना, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। By feeding her young ones, she had added fuel to the machine, and as a result, the chicks now have the energy to be active and make noise.
अब कोई भी मदर चिड़िया या गोल्डफिंच हो या कोई भी बर्ड हो, वो अपने नेस्ट से बाहर क्यों जाती है? अपने बच्चों के लिए फूड का, उनकी फीडिंग का इंतजाम करने के लिए, उनके लिए अरेंज करने के लिए। तो वो बाहर से लौट कर आई है अपने नेस्ट पर, अपने बच्चों के पास, तो वो जो कुछ भी अपने साथ लाई है उससे फीड कराती है, और चूंकि फीड करने के बाद बच्चों में और ज्यादा एनर्जी आ जाती है, वो और ज्यादा शोर करने लगते हैं और एक्टिव हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। After feeding her chicks, the goldfinch flies up and rests on the end of a branch of the tree. अपने बच्चों को फीड कराने के बाद, खिलाने के बाद, मदर गोल्डफिंच उड़ती है और ट्री के एक दूसरे ब्रांच पर, उसके एंड पर जाकर रेस्ट करने लगती है। Her identity concealed behind the yellow flowers and yellowing leaves. अब चूंकि गोल्डफिंच एक येलो कलर की छोटी सी चिड़िया होती है और पेड़ भी, लेबरनम ट्री भी येलो हो चुका है, तो उसकी आइडेंटिटी पेड़ के येलो पत्तों के पीछे छुप सी जाती है या मिल सी जाती है। बिल्कुल येलो चिड़िया और येलो कलर का पेड़ आपस में मिक्स से हो जाते हैं। That was the explanation of stanza 2. Now I will tell you stanza 3. Then with airy, delicate whistle chirp, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Now the explanation is, after some time the goldfinch makes a strange, short, high-pitched sound. कुछ समय तक एक अलग ब्रांच एन पर बैठने के बाद, रेस्ट करने के बाद, एक बहुत तेज आवाज निकालती है, छोटी सी आवाज, गोल्डफिंच। Then she flies away towards the infinite sky. और उसके बाद वो अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। The laburnum tree becomes silent again after the departure of the goldfinch, and everything seems to be the same as it was before the arrival of the goldfinch. गोल्डफिंच के जाने के बाद लेबरनम ट्री फिर से बिल्कुल शांत और स्थिर नजर आने लगता है, जैसा कि वो उसके आने से पहले बिल्कुल शांत और स्थिर था, और गोल्डफिंच के जाने के बाद फिर वो वैसा ही हो जाता है। Children, that's all the poem, but the whole thing is that कि गॉड ने जितना भी लिविंग बीइंग क्रिएट किया है इस वर्ल्ड में, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। आपने इस छोटी सी पोएम में ये देखा कि एक येलो पड़ा हुआ लेबरनम ट्री बिल्कुल स्टिल और क्वाइट अपनी जगह पे खड़ा है और उसमें कोई लाइफ जैसे महसूस नहीं हो रही है। तभी एक छोटी सी चिड़िया गोल्डफिंच एंटर करती है और थोड़ी देर के लिए ही सही वहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल लाइवली हो जाता है। क्यों? क्योंकि मदर गोल्डफिंच के एंटर करने पर उसके बच्चे, इसके चूजे बिल्कुल जोर जोर से आवाजें करने लगते हैं और उसमें ट्री में एक मोशन, मूवमेंट नजर आने लगता है। चिल्ड्रन, यहाँ पर लेबरनम ट्री ने गोल्डफिंच को अपने में जगह दी है, शेल्टर दिया है, नेस्ट बनाने का जगह दिया है, जिसमें कि वो अपने छोटे छोटे चिक्स को रेस कर रही है, पाल रही है। तो अगर लेबरनम ट्री ने उसको अपने में शेल्टर दिया है और गोल्डफिंच ने नेस्ट बनाया है, तो इस बात का बदला वो कैसे देती है? उस ट्री में मूवमेंट पैदा करके, लाइफ लाकर अपनी एंट्री से। देन छोटा सा मतलब सिर्फ ये है कि जितने भी लिविंग बीइंग इस धरती पर, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, वो उनकी सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, अपना अपना यूज है। कोई भी क्रिएचर बड़ा या छोटा नहीं है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा ब्रेन है हमारे पास और हम बहुत बड़े क्रिएचर्स हैं, तो हमारे साथ जो भी हैं, या पेड़ पौधे हों या और सारे बीइंग्स हों और एनिमल्स हों, तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और अगर हम साथ रहते हैं एक ही वर्ल्ड में, तो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते ही हैं, जैसे यहाँ पर लेबरनम ट्री और गोल्डफिंच ने एक दूसरे के लिए किया। Now I will tell you poetic devices used in this poem. Poetic devices are used in a poem to beautify it, to add more meaning to it. So let's know about the poetic devices used in this poem, The Laburnum Top. First one is simile.
In this figure of speech, one thing is compared to another. जब comparison किया जाता है तो simile use होती है. An example of simile is sleek as a lizard. गोल्डफिंच के मूवमेंट को लिजर्ड के मूवमेंट से कंपेयर किया गया है. Then simile has been used here. Metaphor. In this figure of speech, a word or phrase is used to represent something else. अगर किसी वर्ड या फ्रेज का यूज कुछ और रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है तो मेटाफर होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर इन दिस पोएम आर engine of a family. engine वर्ड का यूज किस लिए किया गया है? engine वर्ड का यूज किया गया है गोल्डफिंच को बताने के लिए. Where engine represents the mother goldfinch and machine which represents the nest. machine वर्ड का यूज किया है नेस्ट को बताने के लिए. So metaphor is used here. Alliteration. In this figure of speech, a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series. अगर किसी एक सेंटेंस में या एक सीरीज में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन का यूज होता है. Examples of alliteration in this poem are September sunlight because S letter consonant sound is used. A suddenness, a startlement, a sound has been used. And alert and abrupt, a has been used again. And tree trembles and thrills, t has been used here. So alliteration is used. Onomatopoeia. In this figure of speech, a word is formed from a sound similar to it. अगर दो वर्ड्स एक जैसा साउंड करते हुए होते हैं तो onomatopoeia होता है. Examples of onomatopoeia in this poem are twitching chirp, chittering, trillings and whistle chirp. एक जैसा साउंड करते हुए आप यहाँ पे जो वर्ड्स हैं. So onomatopoeia has been used in this poem. That's all about the poem, children. I hope you have understood the poem, enjoyed it and liked it. Thank you so much.